Hey, Yeshua, ¿cómo está? Estoy bien, gracias. Yeah, mucho gracias. So, how haven't you come here? Everything is okay? Yes, it is. All right. Maybe today's Hakan is coming. Yeah, you might. Yeah. ¿Cómo Dios creó los ángeles? Hey, Yeshua, very interesting. La Biblia explica cómo Dios creó la gente. Hey, Yeshua, you know the Lord Jesus Christ much love us. I believe that Jesus Christ is the Savior of the world. Did you know, Mr. Alam, Jesus Christ is coming soon? Yes, Yeshua, Jesus Christ is coming soon. He will judge to the world. Hey, Mr. Connie's coming. ¿Cómo estás, amigos? Mucho gracias. Yes. Are you fine now? Yes, my child. Thank you for asking. That I was in that good for a few days. I told you that, Mr. Allen, your phone wasn't working. I told you that, Jackson to explain that I was in. Mr. Akani, have you watched the program called V in the Bible? Yeah! That was very, I was much worried about it, that I couldn't watch that program, but a little bit somebody told me that he has the answer about the angels. Mm-hmm. Can you attend my phone, please? Take your time. Somebody calling me from my village. All right. Hello? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਸ਼ੰਦ ਕੀ ਆਂਦੇ ਜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਕੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਆਹੋ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ Okay. Somebody gave us a, from my village. It's okay. So say to your dad to hello. Okay. I will see him tomorrow. Yeah, sure you can, my child. You can. It's night. You need to sleep. God bless you, my child. Bye, Joshua. आगामी सर्दी तो बहुत होगी भाई। देखो जी ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਜੰਮ ਚੱਲਿਆ ਛੱਡ ਫਿਰ मैं आख्या कि नहीं मैं आंसर के पास पहुंचूंगा तो उनसे बात करूंगा जाकर। ये तो आपकी मोहब्बत है हकानी की। मैं फिर एक सवाल लेके आया था। हकानी कौन सा सवाल लेकर आए हो? अभी तो पहला सवाल क्लियर नहीं हुआ। देखो जी पहला सवाल तो मैंने देख लिया था फेसबुक पर। बड़ा बयान किया पास्टर आजम साहब ने जी। सदियां गुजर गई पूछते पूछते। हकानी मैं हैरान हूँ तुम्हारी इन बातों से कि तुम ऐसे सवालात लेकर आते हो। क्या तुम्हें हमारे अलावा कोई और पादरी नहीं मिलता? वैसे बहुत होशियार हो। अगानी हर वक्त किसी न किसी सवाल में फंसाने की कोशिश करते तो। वैसे क्या आइटम हो? आइटम क्या है कि जी जब आप जैसे लोग मिल जाए पढ़े लिखे तो फिर सवाल तो दिल में पुड़क के बाहर आते ही हैं ना। यहाँ देखिए। हाँ ठीक कह रहे हो। वैसे जिस मुल्क से आए हो वहाँ पर इतने पादरी हैं, कभी उनसे सवाल ये पूछा इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, पाकिस्तान में बहुत बहुत सकालर पैदा हो। किसकी बात कर रहे हैं बाबू जी आप? अगानी अपनी उम्र का ख्याल करो। देखे जी मैं ये नहीं कहता बड़े हुए होंगे, साढ़े सवालों का जवाब जब सवाल करते हैं तो कहते हैं कि ये झूठी तालीम है। वो जब भी कोई सवाल किया तो कहते हैं कि ये गलत तालीम है। जब किसी किताब का नाम ले ले तो कहते हैं कि ये अपाकराफा है। सवाल पूछे तो नफरत करते हैं कि यहाँ देखे। अगानी कुछ ख्याल करो, अपने दिन देखो कैसे चल रहे हैं। क्यों लोगों से गालियाँ लेने चाहते हो? लोग गालियाँ निकालेंगे तुम्हें। गालियाँ समझते ना ये किस किस्म के लोग हैं। इसीलिए जो सवाल लेकर आए उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं समझता हूँ बाबू जी आपकी बात को। मेरे वालों मेरी माँ भैन एक कर छड़न हो इन्हों के पल्ले है कि जे
ਜੇ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਾ ਪਾਣ ਕਿਆ ਦੇ ਜੇ बिल्कुल ठीक है नहीं ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ 4 ਦੇਗਾਂ ਚੜਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਸਪਾਓਗੇ I'm agree with ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਅਗਲੇ ਕੱਢ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਬਾਊ ਜੀ बहुत मेहरबानी जी आप चले जाएं तो अच्छा है आका नहीं सवाल बहुत करते हैं ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ हाँ 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 कहा नहीं मिल जाएगा जवाब आपको ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ मिल जाएगा जवाब कल 5 साहब आ रहे हैं आप ਬੂਆ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ जी अभी भाई आलम। साहब आइए क्या हाल है? हाँ बिल्कुल ठीक दरवाजा खुला है दरवाजा खुला है? जी जी ये आलम साहब कैसे हैं आप? आइए रेवरेंड कैसे हैं आप बिल्कुल खुदा उनका शुक्र है। और कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक है। शुक्र करना चाहिए I यार always praise to the Lord that who's keep Yeah. us alive on this earth Yeah, for His great commission for Yeah. winning the soul. I was expected that might be you will pieces in your libraries and in your workshop that you always busy. You yeah know? So I was expected. मुझे ये पता नहीं था आप आज अपने गार्डन पे बैठे होंगे। अगानी आज छुट्टी पर है तो मैंने सोचा कि अगानी भी छुट्टी पर है अंदर कमरे में बैठ के क्या करेंगे बाहर का मजा लेते हैं बहुत अच्छे। तो रेवरेंड जैसे कि आप जानते हैं गुज़श्ता हफ्ते हमने फरिश्ते के बारे में बात की कि बाइबल की तारीख इसके बारे में हमें क्या समझाती है। लोग कहते हैं कि सदियां बीत गईं कभी किसी ने इसके बारे में बताया नहीं। बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। लगता है बारिश आने वाली है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो हम अंदर चलते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बाहर बहुत अच्छा मौसम था लेकिन बारिश की वजह से सरा हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। खैर बाहर भी मौसम अच्छा था जी लेकिन सर्दी के आयाम हैं जी तो इस वजह से मौसम तो फिर होता रहता है। कुदरत का निज़ाम है और हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम उस अपने पॉइंट पर आए। जैसे आपने मुझे फ़ोन पर बताया था कि कुछ लोगों ने सवालात किए और हकानी भी सवाल कर रहा था। वो नज़र नहीं आ रहा। जब भी मैं आता हूँ वो यहाँ पर नहीं होता। तो आप मेहरबानी करके वो सवालात जो हैं उनकी बतारी खोलिए। रेवरेंड क्या जब फरिश्ते आसमान से गिराए गए क्या वो गिरने के बाद ज़मीन पर फरिश्ते फरिश्ते ही रहे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फरिश्ते रूप बदलते हैं वक्ती तौर पर। For the time being they can change their contents. लेकिन उन्होंने कोई बस्ती या कोई शहर आबाद नहीं करना होता कि वो परमानेंट तौर पर वहीं पर रहे। उनका परमानेंट मुस्तकिल कोई रूप नहीं होता। फरिश्तों ने जब शादी की क्या वो औरतों के साथ रहते थे? फरिश्तों को साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत सिर्फ इंसानों की है। जिन औरतों के साथ उसके ताल्लुकात थे जिनके साथ उन्होंने शादी की जी और वो वहां पर अक्सर हाजिरी दिया करते थे। वाह हाजिरी देते थे? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं। जी मिसाल के तौर पर जब शागिर्दों को खुदावंद यसु मसीह की जरूरत होती वो वहां जाहिर हो जाता था। जब जरूरत थी तो वो हूरब के पहाड़ पर जाहिर हुआ। किस रूप में? याद रखिएगा मेरी एक बात को जी इसे अच्छी तरह अपने जहन नशी कर लें। यहोवा के जिस्मानी रूप का नाम सैयदना खुदावंद यसु मसीह है। वाह क्या कहने। एक बात बताएं आखिर कोई ना कोई फरिश्ते का रूप तो होगा। यही फरिश्ते कभी तूफान बन जाते हैं कभी आग बन जाते हैं कभी शेर। बाइबल से हटकर बात नहीं कर सकते हम। सब कुछ बाइबल में ही लिखा है। समझने की जरूरत है। रेवरेंड फरिश्ते के क्या मायने हैं? देखें फरिश्ता एक टाइटल है और इसके पीछे एक कुव्वत काम करती है, एक ताकत। जिस तरह कंप्यूटर्स है मशीनरीज है बिजली के बगैर ये
बिल्कुल बेकार है। चीज तो है लेकिन चलाने वाली ताकत नहीं। फरिश्ते के पीछे जो ताकत काम करती है उसका नाम यहोवा खुदा है। फरिश्ता उस ताकत की नुमाइंदगी करता है जिस तरह बल्ब बिजली की नुमाइंदगी करता है। बिजली का कोई रूप नहीं, जिसमें आएगी उसी रूप में काम करेगी। अब जब भी फरिश्तों की बात करते हैं तो सईदना अल मसीह की मसाल क्यों, जबकि वो तो रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन भी तो रूह है। सईदना खुदावंद यसु मसीह भी तो रूह है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि फर्क सिर्फ इतना है कि फरिश्ते मखलूक हैं और सईदना खुदावंद अल मसीह खालिक। वाह, हम सब मैं बयान करता हूं, गौर कीजिएगा। खुदावंद की तारीफ हो। यहोवा खुदा रूह, यसु मसीह बेटा रूह। ये रूहुल कुद्दस है लेकिन है रूह। इसी तरह फरिश्ते रूह हैं। माइकाइल, जिब्राइल, ये सभी रूह ही तो हैं। मुझे एक बात परेशान कर रही है, आखिर बच्चे कैसे पैदा कर लिए? एक डॉक्टर एक औरत को सलाई के जरिए क्रोमोसोम इंजेक्ट कर देता है। इंसानों को इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, फरिश्तों को नहीं। वो जिस तरह चाहें क्रोमोसोम रख दें। सही कह रहे हैं आप, जो है ही इनविजिबल, उनको क्या जरूरत है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो इसी तरह स्टिमुलेट कर लेते थे। मैं समझा नहीं। जिन्नात आज के मुस्तवरात होते हैं, मत मार देते हैं वो। मुझे याद है कि मैं और एक पादरी साहब किसी के घर में दुआ करने गए। अच्छा, आधी रात का वक्त था। साहिल की जोजा ने, जिसको एक बदरू ने चलने के काबिल नहीं छोड़ा था, बेचारी कहने लगी कि कोई आदमी उससे जमा करता है। ये ऐसा होता है। खिदमत के आगाज के दौरान अक्सर पादरी साहबान के साथ ऐसे केस देखने में आया करते थे। ऐसी चीजें यही करती हैं। बड़े तजर्बात हैं। वक्त की कमी के बायस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। कहते हैं कि सच्चाई तजर्बे की मोहताज है। जी। एहतलाम हो जाना, बुरे ख्वाब आना, ख्वाब में जमा करना, बस समझ जाए वो यही किया करते थे। समझे आलम साहब? रेवरेंड, मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ। आई डू अप्रिशिएट माय सर। गॉड ब्लेस यू। और जो खिर्द की रूह नहीं रखते वो घोड़ों और खच्चरों की मानद होते हैं आलम साहब। बिल्कुल। खुदा के कलाम में अगर आप पढ़ें, बल्कि बचपन से तो हम उसकी हमदो सना के लिए गाते ही आ रहे हैं जी। ना हो कोड़ियां खच्चरा वंगर तू, कुछ भी नहीं, कुछ समझ भी नहीं है समझ जो नानो। क्या बात है। जो घोड़े और खच्चर होते हैं ना, उनको की समझ नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि उनमें वो खिर्द की स्पिरिट नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह जो दुनिया में आपको लोग बड़े अच्छे मालूम होते हैं और ऐसा लगता है कि ये बड़े इज्जतदार हैं, लेकिन अगर उनके पास खिर्द की रूह नहीं तो वो जानवर ही समझे। समझे नहीं बल्कि हैं। क्योंकि किताब मुकद्दस ज़बूर नवीस में लिखा है कि इंसान जो इज्जत की हालत में रहता है लेकिन खिर्द नहीं रखता, वो जानवरों की मानंद है, हैवान की मानंद है। तो शुक्र करें आप उस खिर्द की रूह को रखते हैं। इसी वजह से आप इस बात को समझ रहे हैं। जी। किताब मुकद्दस यहूदा के खत में मरकूम है कि खुदावन ने उन्हें तारीख गारों में बंद कर दिया। बिल्कुल बजा फरमाया आलम। शुक्रिया। खुदावंद के कलाम में ये मरकूम है। जी। यहूदा के खत में हमें ये बात मिलती कि उसने उनको तारीख गारों में बंद कर दिया। जी। कोशिश किया करें कि खाली उर्दू पर जोर ना दिया करें, उर्दू पर जोर ना दिया करें। बाइबल स्टडी अगर करना चाहते हैं, आप डीपली तौर पर समझना चाहते हैं, तो आपको यूनानी, लातीनी, अरामिक और हिब्रू लैंग्वेज आप बोले चाहे ना, लेकिन स्टडी किया करें। आजकल तो बहुत से टूल्स हैं तो आपको पता चल जाएगा। और इस दुनिया को तारीकी का गार कहा गया है। वाह वाह वाह, क्या कहने। अब वो ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि उस मकाम पर जहां पर यहोवा खुदा तख्त नशी है, उस जगह पर उनका जाना बंद है। तो ये दुनिया क्या है? तारीकी का गार। हाय हाय। उनको कब बंद किया? इस मुआशरे में जराइम करने वाले लोग बहुत ही चलते फिरते नजर आते हैं आपको जी, लेकिन जब उनका जराइम बढ़ जाता है तो उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। और देखने में आपको वो एक मकान ही लगता है, एक इमारत लगती है, लेकिन उसी में जराइम पेशा लोगों को बंद किया जाता है। जेल में भी जेल होती है आलम। मतलब कि कोठी, सेल, क्रोस रूम,
जिसमें लाइट नहीं होती उन्हें बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल। उन्हें महदूद रखा जाता है कि अब उस जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। समझे मेरी बात? रेवरेंड, मैं सोच रहा हूँ अगर वो जमीन पर हैं, अब वो कहाँ हैं? कहीं ना कहीं तो होंगे ना। इसी दुनिया में है वो, अपने अपने मजहब बनाकर बैठे हैं। लोग उन्हें खुदा मानते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा है रेवरेंड। बेशक, दरअसल उनको जिस्म चाहिए। ये इंसानों और जानवरों के जिस्म को इस्तेमाल करते हैं। ओह वाह, इससे बढ़कर इंसान की तबाही और क्या होगी? इससे बढ़कर तो तबाही नहीं हो सकती। लेकिन सैयदना खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों को बचाने के लिए आया है, उसी तबाही से बचाने के लिए आया है वो। अब जो कोई उसे कबूल नहीं करेगा, तबाही और हमेशा की आग ही उसका बकरा है। अगर वो बचना चाहता है, Yeah, he has to come to the Lord Jesus Christ. amen. Nobody can save us in whole of the world, even the heavens and the earth and under the earth, except the Lord Jesus Christ, and who is the Son of God, even is God himself. फिर लोग बचते क्यों नहीं? इन्हें बचना चाहिए। बच तो सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है। कैसी शर्त रेवरेंड? जब तक कोई खुद ना कहे, आए यसु नासरी, मुझे बचा, मुझ पर रहम कर, उस पर रहम नहीं हो सकता। जिस तरह बर्तलमाई ने कहा, जिस तरह जकई ने कहा कि मुझे बचा, इसी तरह इंसान ने खुद ही अपने आप को इस जहान के खुदाओं के हवाले किया है। ऐसे लोगों की आने वाली नस्लें भी इन्हीं की पैरोकार हैं, और आखिरकार जहन्नम की आग उनका बकरा है। इस जमीन पर आपको कोई नहीं बचा सकता, आसमान पर आपको कोई नहीं बचा सकता, ना ही जमीन के नीचे। हाय 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 हाय। एक ही है, और मैं दावा से कहता हूं, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। Praise the Lord. वही बचा सकता है, Praise the Lord. वरना तमाम दुनिया का बकरा जो है मसीह यीशु के बगैर जहन्नम की आग है। Wow. हालेलुया। Hallelujah. खुदावंद आपको बड़ी बरकत। आपका भी। ये सिलसिला यहां पर नहीं खत्म हुआ, बहुत लंबा है अभी। जी मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों, ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा, बाइबल और हम, हर हफ्ते की शाम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों, इजाजत चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय मसीह की। बिल्कुल, जय मसीह की। मैं चलता हूँ। अगर कहते तो आपको ड्राइव कर दूं? नहीं, मैं मैनहट्टन की तरफ जाऊंगा, और सर्दी भी काफी है, गाड़ी है मेरे पास। अच्छा, तो आजकल आप गाड़ी पर जा रहे हैं?